Dear student, in this question, we have to fill up the blank with the three symbol greater than, less than or equal to. Here the first question is minus 3 plus bracket minus 7 fill up minus 3 minus bracket minus 7. So first we solve all the sides. It means left hand side and the right hand side. Here minus 3, I will write minus 3 plus and minus, that is minus, and this is the fill up, and minus 3 and this is plus 7. Now both the integers are negative and it means like signs, therefore we will add them their absolute value, and the common symbol is negative, therefore I will write minus 10. And here both the integers are unlike signs, therefore I will subtract them. The answer is 4 plus 4. Why plus 4? Because 7 is greater, the greater absolute value is having positive symbol, therefore I will write plus. Now which is greater between these two, positive or negative? Clearly positive one is greater, therefore I will write this symbol here and give my answer in this way, that the right hand side is greater than left hand side. Minus 23 minus of minus 23 fill ups minus 23 plus bracket minus 23. In this question, minus 23, negative of a negative integer is positive, minus 23, positive and negative multiplication, that is negative. Here this is minus 23 and this is plus 23, therefore their answer will be 0. And here minus 23 and minus 23 both are like signs, negative, therefore minus 46, there is answer. We will add them. Now which is greater? 0 is greater than every negative number, therefore 0 is greater than, I will write the symbol of greater than towards 0. So I will write this. Now part third. In part third, minus 30 and minus 30 and minus 30 and plus 30. As we know, if the integers are of unlike sign and having same absolute value, then their answer is 0. Minus 30 minus 30, that is minus 60. Now which is greater? 0 is greater. So minus 15 plus minus 25. No, minus 15 plus and minus minus 25. Minus 25 and minus 15. Here you will see minus 15 and minus 15 is here. Minus 25 and minus 25 is here. So there is no need to solution or to solve these left and right part. But if you want to solve, then we can do. Minus and minus both are like signs, therefore we will add their absolute value. 25 plus 14, that 15, that is 40, and I will write the negative symbol, and here the same minus 40. So the answers are same, so I will write equal to symbol and here equal to symbol. Now students, इस वीडियो में हमने देखा कि हमको फिलअप कंप्लीट करने थे, और यहाँ हमको एक लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है एक्सप्रेशन और एक राइट हैंड साइड में दिया हुआ है. हम इन दोनों को हल करेंगे और इन दोनों को हल करने के बाद देखेंगे कौन सी साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में कौन सा आंसर बड़ा आता है या दोनों आंसर बराबर आते हैं. तो यही चेक करने के लिए हम इनको पहले सॉल्व करेंगे. तो माइनस थ्री का मतलब क्या है? माइनस 3. यहाँ पे प्लस और माइनस जो मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका मतलब बन जाता है माइनस 7. अब हमने यहाँ पे लिख लिया. तो अब इधर दूसरी साइड में है माइनस 3 और माइनस जो मल्टीप्लाई होते हैं तो हम प्लस लिखते हैं, प्लस 7. अब माइनस 3 और माइनस 7 का मतलब क्या होता है? माइनस 10. क्योंकि दोनों के दोनों माइनस हैं, इसलिए मतलब दोनों के दोनों की निशानियां जो हैं सेम हैं, इसलिए हम दोनों को जोड़ेंगे. तो जोड़ने पर हमको मिलता है 10 यानी माइनस 10. माइनस क्यों? क्योंकि दोनों के साथ जो कॉमन सिंबल है वही हमने लगाना है.
अब यहाँ पे देखते हैं दोनों के साथ सिंबल डिफरेंट है, माइनस और प्लस। तो अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ नहीं सकते, हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी माइनस करेंगे। तो 7 में से जब 3 जाएगा तो क्या बन जाएगा 4। ओके 4। तो इसमें से बड़ा कौन है 7, तो हमने निशानी 7 की लगानी है। तो हमारे पास दो आंसर आ जाते हैं 10 और 4। तो इसमें से -10 और +4, तो हम जानते हैं कि नंबर लाइन के ऊपर कौन सा इंटीजर बड़ा होता है, पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो हमारा पॉजिटिव सिंबल यानी +4 बड़ा है। +4 कहाँ से आता है, हमारी राइट हैंड साइड से आता है। तो हमने राइट हैंड साइड की तरफ बड़े होने का इसका निशान लगा दिया, दैट इज कॉल्ड >2। इसको >2 कहा जाता है। सो हमारी ये जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड से बड़ी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में -23, हमने -23 लिख लिया। अब नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव, तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 23 और ब्रैकेट को खत्म कर दिया। अब इस साइड में क्या है -23 और ये प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो इसको लिखेंगे 23। ठीक है, अब एक बात आपको अच्छे से समझनी है कि जहां पर दो इंटीजर हों और उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू सेम हो और वहां उनके सिंबल जो अलग हों, जैसे कि एक माइनस है और एक प्लस है, तो दोनों का आंसर 0 आ जाता है। तो दोनों कट भी जाएंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं काट के, तो यहाँ पे आ गया 0 और इधर 0 आ गया। और इधर क्योंकि दोनों की निशानियां बराबर हैं, दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, इसलिए हम दोनों को जोड़ेंगे। तो 23 और 23 दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास 46 आ जाता है। क्योंकि दोनों के साथ कौन सी कॉमन निशानी लगी है माइनस की, तो हम माइनस लिख देंगे, तो -46। तो अब हम जानते हैं कि 0 में और नेगेटिव में कौन सा बड़ा होता है, 0 ही बड़ी होती है, इसलिए हम 0 की तरफ बड़े ग्रेटर का निशान लगा देंगे। अब हमारे पास आ गया तीसरा पार्ट, -30 फिलअप -30 +30। सबसे पहले हम ये वाला हिस्सा देखते हैं, -30 और -30। यहां से ब्रैकेट कहाँ गया, क्योंकि इस ब्रैकेट के बीच में कोई भी और सिंबल नहीं है, तो हम बाहर का सिंबल ही लगा देंगे। माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस ही हो गया। दूसरी साइड में हमने इसको ऐसे ही लिख दिया क्योंकि कोई ब्रैकेट नहीं है। अब हम जानते हैं -30 और +30, इसका आंसर क्या होता है 0, जिस तरह हमने ये किया था। अब -30 और -30, इसका क्या बनेगा -60। अब हम जानते हैं 0 बड़ा है या -60, तो 0 बड़ा है, इसलिए हम 0 की तरफ बड़े होने का निशान लगा देते हैं। अब इसके बाद में है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, -15 प्लस -25 फिलअप -25 -15। नो -15 प्लस और माइनस क्या होता है -25 फिलअप, उसके बाद में -25 -15। नो ये दोनों नेगेटिव हैं, हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है 40 और 40 के साथ लगेगा माइनस का निशान। यहाँ भी दोनों नेगेटिव हैं, दोनों को जोड़ के -40 बन जाएगा। अब हमने देखा कि दोनों के दोनों बराबर है। यहाँ पे हम ना भी आते तो भी इसको कर सकते थे, क्योंकि देखते हैं -15 यहाँ पे है, -15 यहाँ पे है और -25 यहाँ पे है और -25 भी यहाँ पे है। तो हम दोनों को देखते हैं कि दोनों ही चीजें बराबर हैं, तो हमने यहाँ पे == का सिंबल लगा दिया। तो इस तरह से हमने ये सारे प्रश्न हल कर लिए।